A very good morning, student. Hope all of you fine. Okay. Standard 7th Science, chapter number 16th. Water, a precious resource. Precious means valuable. Precious means valuable, या तो हम बोलेंगे most important, है ना. All the biological processes are going on in human body, in animal body, in plant body with the help of water. Either it may be transportation, digestion, excretion. Water is very much required. So it is a precious or it is a valuable resource for us to survive or for the sustain of life. Water is important. Okay. Water is one of the most common and useful substance around us. Water is essential for the existence of life, है ना. मैंने अभी बताया existence, survival, लाइफ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. All the living things, human beings, other animals and plants need water to live. Without water there would be no living thing on the earth. पानी नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस अर्थ पे नहीं होगा. वाटर इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी ऑन अर्थ. जैसे कि हम बोलते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट. क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट. वाई ब्लू कलर अपीयर? बिकॉज ऑफ वाटर बॉडीज, seas, oceans, lakes, ponds, etc. Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans. कहाँ पे है ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर? कहाँ पे है? सीज एंड ओशंस में, एज कंपेयर टू रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्नो कवर्ड माउंटेन ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, एज अंडरग्राउंड एंड इन द एटमोस्फियर. Okay, actually about 71% of the earth's surface is covered with water. 71% वाटर अर्थ पे है, 29% जो है वो लैंड एरिया है. दैट्स वाई अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. यस और नो? Of the total water present on the earth, about 97.4% is in the seas and oceans. 97.4% water किस में included है? Seas and oceans में. And as we all know, seas and oceans are having salty water, saline water. Amount of salt is there. Okay? The sea water is highly salty or saline. The saline water of the ocean, seas is not fit for the human consumption. Human consumption के लिए fit है क्या? Useful है क्या? It is not useful. Either it may be for agriculture purpose or for industrial purpose, for other animals also. Saline water. The water which is fit for use of human beings is called fresh water. जो पानी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ है उसको बोला जाता है फ्रेश वाटर. Only 2.6% of the total water on the earth is fresh water. और अर्थ पे कितना फ्रेश वाटर है? Only 2.6%. Most of the fresh water is in frozen state. और जो उसमें से भी मोस्ट जो अमाउंट ऑफ वाटर है फ्रेश वाटर वो कैसा है? फ्रोजन स्टेट में है. कहाँ पे फ्रोजन स्टेट? इन पोलर रीजन. कहाँ पे है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Snow, ice on snow-covered mountain, glacier, and as polar caps. The readily available fresh water available for use by us is only about 0.006%. जो readily available है water, जो readily available water है वो कितना है? 0.006% of the total water present on the earth. See, one activity is given in your book. There is an activity, first picture of bucket 20 लीटर. 20 लीटर की कैपेसिटी की एक बकेट है. 500 ml का एक जग है. 150 ml का ग्लास टम्बलर है एंड 1 ml का एक स्पून है. सो ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है? फर्स्ट, टेक अ बकेट एंड फिल 20 लीटर ऑफ वाटर इन इट. बकेट में क्या करना है? 20 लीटर की कैपेसिटी, तो हमें 20 लीटर वाटर उसमें पोर करना है. सपोज दैट दिस 20 लीटर वाटर इन द बकेट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द
अर्थ। ये जो 20 लीटर पानी हमने बकेट में भरा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अर्थ पे जो पानी है वो कितना है टोटल 20 लीटर। सेकंड, ट्रांसफ़र 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट इनटू द मग। 20 लीटर की बकेट में से 500 ml किस में लेना है, मग में लेना है। उस 500 ml मग में से 150 ml पानी किस में लेना है, ग्लास टम्बलर में। उस 150 ml ग्लास टम्बलर में से पानी किस में लेना है, 1 ml का जो स्पून है उसमें से। फाइनली क्या होगा, देखो, टेक आउट अ क्वार्टर टीस्पून 1/4 टीस्पून फुल ऑफ वाटर इन फ्रॉम द मग, दिस इज़ अबाउट 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ये एक्टिविटी से क्या कंक्लूड हो रहा है, एक्टिविटी से क्या कंक्लूड हो रहा है, तो 20 लीटर वाटर क्या है, जो वाटर ऑल ओवर द अर्थ में है। 500 मिलीलीटर वाटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर प्रेजेंट इन सीज, ओशन एंड अनयूजेबल अंडरग्राउंड। देन 150 मिलीलीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फ्रोज़न वाटर है आइस कैप्स, पोलर रीजन में आइस कैप्स है, ग्लेशियर से उसमें। एंड वो जो 1 ml स्पून फुल वाटर है दैट इज़ ओनली द फ्रेश वाटर विच इज़ यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। मीन्स आप सोचो कितनी स्मॉल क्वांटिटी में वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है। ओके, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट the actual amount of water available for use by human being other than animal is very very small as compared to the total water on the earth। क्या कंक्लूज़न हो रहा है कि जो स्पून में जितना वाटर है 1 ml, वो वाटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फ्रेश वाटर है जो यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ओके, अब ये जो वाटर मेंटेन हो रहा है अर्थ पे, मेंटेन हो रहा है ना, जो 2 ml जो एक्टिविटी हमने देखी है, स्मॉल क्वांटिटी जो 0.06% वाटर जो अर्थ पे है, ये जो मेंटेन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वाटर साइकिल। 6th स्टैंडर्ड में मैंने वाटर साइकिल आपको बताई थी, रिकॉल करो वाटर साइकिल को। द जर्नी ऑफ वाटर इन द नेचर इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। अब जर्नी कैसे है, मेनली 2 processes are involved in water cycle. First one is evaporation and second one is condensation. Yes, याद आया, first one is evaporation and second one is condensation. What is evaporation? Due to heat water is transformed into water vapor, मीन्स लिक्विड वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म में टर्न हो रहा है, दैट इज इवोपरेशन। एंड ड्यू टू कूलिंग, हीटिंग से इवोपरेशन हो रहा है, कूलिंग से क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर है अगेन टर्न इनटू वाटर फॉर्म या वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज कंडेंसेशन। ओके, क्या होता है वाटर साइकिल में, oceans, rivers, lakes and ponds contain water in liquid form. Evaporation of water from the ocean, river, lakes, ponds form water vapor which goes into air. Due to the heat of sun, जो वाटर बॉडीज़ है ऑल ओवर द अर्थ, उस पर क्या हो रहा है, इवोपरेशन की प्रोसेस हो रही है। आफ्टर इवोपरेशन लिक्विड वाटर इज टर्न इनटू वाटर वेपर एंड दैट वाटर वेपर इज लाइट इन वेट, हल्की है, इसीलिए वो कहाँ जा रही है, अप इन द स्काई। ओके, स्काई में जाने के बाद आफ्टर दैट क्या होता है, दैट वाटर वेपर इज कंबाइंड विथ डस्ट पार्टिकल्स, एयर, गैसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। क्या फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे, क्लाउड। जब भी वो क्लाउड्स को कूल एटमॉस्फेयर मिलता है, क्लाउड्स को कूल एटमॉस्फेयर जब भी मिलता है, जो वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है, दैट वाटर वेपर अगेन टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। मीन्स इवोपरेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, अर्थ पे हो रही है। कंडेंसेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, स्काई में। और वाटर ड्रॉपलेट्स को जैसे ही वाटर वेपर टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट्स अगेन कम इन द फॉर्म ऑफ रेन, प्रेसिपिटेशन जिसको हम बोलते हैं। ओके, वो रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं। अंडरस्टूड? सो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, इवोपरेशन, condensation, evaporation and condensation means
सीज का पानी क्या है, सीज, ओशंस, रिवर्स का पानी क्या है, वाटर वेपर में टर्न होके क्लाउड्स में गया, क्लाउड फॉर्म हुए, क्लाउड को जब कूलिंग मिला, कंडेंसेशन मिला, वो रेन वाटर फिर से कहाँ पे गया, वाटर बॉडीज़ में. दिस इज द जर्नी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल. ओके, अब फॉर्म्स ऑफ वाटर मैंने यहाँ लिखे, स्टेट्स ऑफ वाटर. फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बोलेंगे जो तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है इन द एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सपोज आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, स्नो है, दैट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. लिक्विड इन द सीज, ओशन, लेक्स एंड रिवर्स, दैट इज़ द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. एंड वाटर वेपर और स्टीम जिसको बोलेंगे दैट इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. समझ में आ रहा है? आइस एंड स्नो आर सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. देन वाटर इटसेल्फ इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. एंड थर्ड नंबर वाटर वेपर और स्टीम जिसको हम बोलेंगे, वाटर वेपर उसको ही क्या कहा जाता है, स्टीम, दैट इज गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. मीन्स फॉर्म्स ऑफ वाटर में क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Ice, snow, glaciers, all these are the solid form of water. Water, liquid form of water, and water vapor means steam is gaseous forms of water. Okay, समझ में आया यहाँ तक? Thank you.